Hello students, how are you all? I hope you all are in good health and taking great care of yourself. I am Fatima Kulsala from Atmiya Green School, Jadeshwar, and I welcome you back to my English class. So let's start with our English grammar class, and we would be continuing with our new chapter, that is chapter number 9, Simple Past. We are already done with the chapter Simple Present in the last video. So let's move on with the next chapter, that is Simple Past. So I request you students to open page number 64 in your grammar textbook, that is Adventures with Grammar and Composition. So students, you know that in English we refer to three times, right? That is past, present and future. We have already studied the present tense, and that is simple present. So now we are going to study about simple past. Now what do you understand by the word past? Past means something which has already happened or which is already over. Okay, so when we are talking about something which is already over or which has already happened, then that tense is said to be past tense. So let's study that chapter. I request you to open your textbook. So now let's read the paragraph given over here. Grandma, GT, Mac and Post were in Cairo last week. They woke up one morning and took a bus to Giza. They visited the pyramids in the Giza. They hired camels and rode around the pyramids. They bought tickets and went into the biggest pyramid. They went into the Grand Gallery first. Stairs led them from the Grand Gallery to the Queen's Chamber and from there to the King's Chamber. They also saw the Great Sphinx in front of the pyramids. It is an enormous statue of a lion's body with a human head. So here students, there is a description about the picnic or a trip for which these four friends went. Grandma, GT, Mac and Post. So here they are describing about their trip to Cairo, which they went last week. And whatever they did in the last week over there, it is written over there, right? Now they went for a picnic last week. मतलब ये already ये trip हो चुकी है. मतलब जो भी चीज़ें हुआ वहाँ पे, right? Whatever things happened over there, they have described it. And when they are describing, they are using past tense, क्योंकि ये सारी एक्टिविटी तो ऑलरेडी ख़त्म हो चुकी है. तो उसको दिखाने के लिए हमें कौन सा टेंस यूज़ करना पड़ेगा? पास्ट टेंस. तो हमारे जो भी वर्ब्स होंगे वो बेस फॉर्म में ना होके दूसरे वाले फॉर्म में होंगे, दैट इज पास्ट टेंस. ओके, हियर यू हैव टू राइट द बेस फॉर्म ऑफ दीज वर्ब्स. मतलब जो वर्ब्स लिखे हैं वो सारे वर्ब्स आपके पास्ट टेंस में है. जैसे कि saw, then led, went, bought, went. Again over here you can see so many of them. Were, woke up, took, visited, hired, rode. ये सारे आपको मैंने पहले ही बताए. Okay, so these are some words, or you can say the action words which are in the past tense. तो इसके हमें बेस फॉर्म मतलब प्रेजेंट फॉर्म लिखना है. ठीक है यहाँ पे. सो लेट्स सी. पहला वाला किया हुआ है, वर का हो जाएगा आर. टुक पास्ट टेंस है और उसका प्रेजेंट टेंस क्या होगा? टेक. बॉट हो जाएगा ब्रिंग. रोड इज पास्ट टेंस ऑफ राइड. देन विजिटेड, उसका पास्ट टेंस, उसका प्रेजेंट टेंस क्या है? बेस फॉर्म विजिट. वेंट का बेस फॉर्म है गो. वॉज का इज. हायर्ड का हायर. एंड द लास्ट वन इज लेड. सो लेड का लीड हो जाएगा. ठीक है. सो दीज आर द बेस फॉर्म्स विच आई रोट इट ओवर हियर. ठीक है. और उसका जो पास्ट फॉर्म होता है वो हमें पास्ट टेंस में यूज़ करना है. ठीक है.
So let's first see कि when are we going to use past tense. हम वो सारी situations पढ़ लेते हैं पहले जिसके अंदर हमें past tense use करना है, ठीक है. So let's see over here. We use simple past tense to talk about the actions done in past. So we are going to talk about the actions which are already done, जो complete हो चुकी है, right? जैसे कि I walked 2 kilometers yesterday. Now you need to remember कि they would be giving the specific time जो action हुई थी, जिस वक्त वो action हुई थी वो specific time दिखाएगा. जैसे कि I walked 2 kilometers. कब? Yesterday. So yesterday shows पास्ट टेंस, ठीक है. और जो वर्ब यूज हुआ है वो क्या है हमारा? वॉकड. दैट इज आवर एक्शन वर्ड विच इज इन पास्ट टेंस. ओके, वॉक आता है बेस फॉर्म और उसका पास्ट टेंस होता है वॉकड. ओके. सेकेंड इज मानसी फिनिश्ड हर होमवर्क इन द मॉर्निंग. हियर ऑल्सो यू कैन सी द वर्ब फिनिश इज पास्ट टेंस. फिनिश्ड उसका बेस फॉर्म क्या होगा? फिनिश, ठीक है. और ये फिनिश्ड क्या है? पास्ट टेंस है. एंड इट इज शोइंग दैट व्हेन डिड शी कंप्लीटेड हर होमवर्क? शी कंप्लीटेड हर होमवर्क इन द मॉर्निंग. शी कंप्लीटेड इट इन द मॉर्निंग. यहाँ पे जैसे दिया था यस्टरडे, यहाँ पे है मॉर्निंग में. वी लाफ्ड अ लॉट एट रोशन्स जोक्स. सो हियर they are talking about something which they did. So they laughed a lot. Rasool visited his grandfather in the hospital last Sunday. So here you can see the verb visited, right? That is an action word which is in past tense. And when did he visited? Last Sunday. So that is something which is specified over here कि वो कब गया था, ठीक है. It's not necessary that they would be giving it a specific time every time, but yes, most of the time it would happen कि आपको सेंटेंस में पता चल जाएगा कि वो एक्टिविटी कब हुई थी और कब ख़त्म हो गई थी, ठीक है, सेंटेंस में. सेकेंड इज़ वाइल नरेटिंग स्टोरीज एंड नरेटिंग इंसिडेंट्स लाइक द एक्टिविटी अबाउ. जैसे कि हमने अभी ये वाली जो एक्टिविटी पढ़ी, राइट. अभी ये क्या है? पूरी एक स्टोरी है जो ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है. वो लोग जब कहीं गए थे तो वहाँ क्या क्या हुआ वो चीज़ को वो नरेट कर रहे हैं. सो वेन एवर यू आर नरेटिंग स्टोरी और इंसिडेंट्स, इसके बाद ये, उसके बाद वो, उसके बाद वो, राइट. तो एक के बाद एक जो भी एक्टिविटी हुई वो सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने किस वाले टेंस में डिस्क्राइब की है? पास्ट टेंस में. ओके. सो दे हैव डिस्क्राइब्ड ऑल दीज एक्टिविटीज़ विच आर गिवन ओवर हियर, ठीक है. जो भी एक्टिविटीज़ है सारी एक्टिविटीज़ उन्होंने पास्ट टेंस में डिस्क्राइब की है. एंड द थर्ड थिंग इज वी टॉक अबाउट पास्ट हैबिट्स. दैट मीन्स सम हैबिट्स विच वी हैड इन पास्ट मे बी अब अभी हम वो सारी चीज़ें नहीं करते हैं प्रेजेंट में, ठीक है. जैसे हम छोटे थे तो हम काफ़ी सारी चीज़ें करते थे जो अब अभी बड़े होके नहीं करते हैं. सो वैसी सारी चीज़ें जो हमारी पास्ट में हैबिट्स हुआ करती थी लेकिन अभी वो चीज़ें हम नहीं करते हैं. So when we are talking about past habits, at that time also we are going to use past tense. For example, my father played a lot of cricket when he was young. So this is something his father did or he had an habit when he was young. ठीक है, ये सारी activities वो past में करते थे. Now when I was a child, I went to school every day. Obviously, when you are a child, then only you would be going to school. है ना, बड़े होके तो कोई नहीं जाता है. सो यहाँ पे ये जो है वो हमने डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया है कि ये एक्टिविटीज़ जो हमारी हैबिट्स हुआ करती थी पास्ट में वो है, ठीक है. सो आई होप कि आपको पता चल गया कि सिंपल पास्ट टेंस कब यूज़ करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट द एक्शंस विच आर ऑलरेडी कंप्लीटेड इन पास्ट, विच आर ऑलरेडी डन, फिनिश हो चुकी है पास्ट में. सेकेंड इज वाइल यू आर टेलिंग स्टोरीज अबाउट समथिंग विच हैपेंड विथ यू आर नरेटिंग सम इंसिडेंट्स. So in that case, all the sentences, all the incidents has to be in past tense. And the third thing is when you are talking about your past habits, that means the habits which you had in the past, now you don't do that. Okay. Okay, so now let's see the formation of the verbs, because
मोस्ट ऑफ द वर्ब्स चेंज व्हेन वी यूज़ पास्ट टेंस, मतलब जो भी वर्ब्स होते हैं उसके स्पेलिंग और फॉर्म चेंज हो जाते हैं वेन एवर वी यूज इट इन द पास्ट टेंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू रिमेंबर दैट वर्ब हैज़ 3 फॉर्म्स. अभी हाल फिलहाल हम 3 ही सीखेंगे. एक होता है V1 जिसको हम बेस फॉर्म कहते हैं, जो हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ करते हैं, ठीक है. सेकेंड वन इज पास्ट फॉर्म, पास्ट टेंस, that is called V2, and the third one is V3, that is past participle. Now this past participle we will learn when we are learning perfect tenses. ठीक है, अभी तो हम लोग सिंपल वाला टेंस सीख रहे हैं, उसके बाद कंटिन्यूअस सीखेंगे और फिर परफेक्ट टेंस सीखेंगे. तो परफेक्ट टेंस के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी. अभी तो हमें ज़रूरत नहीं है V3 की, पास्ट पार्टिसिपल की, बट वी आर गोइंग टू लर्न द पास्ट टेंस. नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट verbs are divided into 2 parts. ओके, verbs 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं रेगुलर वाले और दूसरे होते हैं इरेग्युलर वाले. अभी रेगुलर और इरेग्युलर में क्या फ़र्क है? रेगुलर verbs आर दोज जो हम ईडी लगा के पास्ट टेंस कर देते हैं, जैसे कि डी या ईडी. फॉर एग्जाम्पल वॉक. ओके, वॉक इज़ द बेस फॉर्म. ठीक है, जब उसके अंदर हमने ईडी ही सिर्फ ऐड किया और ये बन गया आपका पास्ट टेंस. ठीक है, सो ये आपका पास्ट टेंस हो गया वॉक्ड, राइट, व्हेन वी एडेड ईडी टू इट. सो when we just add ed and change it into past tense, then those verbs are called regular verbs. किसी में ed ऐड होता है, किसी में d ऐड होता है और किसी में ied ऐड होता है. ठीक है, लेकिन ये सारे verbs कौन से कैटेगरी में आएंगे? रेगुलर verbs में आएंगे. बट when we are talking about irregular मतलब we change the whole format or change whole spelling. For example, if I say eat, ईट क्या है? आपका बेस फॉर्म है, मतलब पहला वाला. जब हम इसको पास्ट टेंस करेंगे तो वो हो जाएगा एट. ये आपका पास्ट टेंस है, दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ओके, नाउ यू कैन सी बोथ द स्पेलिंग्स आर डिफरेंट. सो यहाँ पे ये चीज़ पूरी चेंज हो गई. तो ऐसे जो वर्ब्स है जिसके अंदर हम ईडी या आईईडी या डी लगा के चेंज नहीं कर सकते हैं, वो सारे आते हैं इरेग्युलर वर्ब्स की कैटेगरी में. ओके, सी द वर्ब्स दैट फॉर्म दियर सिंपल पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स व्हेन ईडी इज एडेड टू द रेगुलर वर्ब is called regular verbs, and verbs that do not form their simple past and past participle by adding ed are called irregular verbs. Okay, so you need to remember verbs कौन से 2 टाइप के होते हैं? रेगुलर एंड इरेग्युलर. ओके, रेगुलर verbs मतलब जिसके अंदर हम ed ऐड करके चेंज कर लेते हैं, मतलब किसी भी वर्ब में हमने ed या d ऐड किया और वो पास्ट टेंस बन गया और पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है, तो उसको हम रेगुलर वर्ब्स की कैटेगरी में डालेंगे. लेकिन जो वर्ब्स हमें पूरी तरह से चेंज करने रहते हैं, जैसे कि ईट का एट हो गया, राइट का रोट, ओके, स्पीक स्पोक, सिट सैट, सो ये सारे वर्ब्स हमारे इरेग्युलर होते हैं. तो लेट्स जस्ट लर्न अबाउट द स्पेलिंग्स ऑफ सच वर्ब्स. पहले हम रेगुलर देखते हैं, उसके बाद इरेग्युलर. Let's see the spelling of regular verbs. The first point is, in some regular verbs that end with an e, d is added to the verb to make simple past and past participle forms. Now remember that regular verbs के अंदर simple past और past participle मतलब दूसरा और तीसरा जो फॉर्म होता है वर्ब का, वो मोस्ट ऑफ द टाइम सेम होता है. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है केयर. नाउ फॉर द वर्ड केयर, it has the letter e at the end. Okay, so we can just add d to it and make it into past tense. ये past tense भी है और past participle भी. ठीक है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये चीज़ हर एक चीज़ में काम आएगा. टेंस है
या फिर वॉइस है, स्पीच है, सब चीज़ों में ये काम आएगा. सो यू हैव टू लर्न दिस थिंग कि हाउ यू आर गोइंग टू चेंज इट. सो दीज आर सम वर्ड्स जिसके अंदर लास्ट वर्ड ई है. ठीक है, द लास्ट word is E. So this is your V1 form. When we add D to it, it becomes V2 and V3. So most of the time when you are adding D or ED, मतलब जो regular verbs होते हैं उसमें हमारा V2 and V3 मतलब past tense और past participle वो दोनों सेम ही रहता है. ठीक है. Now see the second word over here. Increase का हो गया increased और past participle भी increased. Now in some regular verbs that ends in consonant, the consonant is doubled and ed is added to make the simple past and past participle forms. That means there are some regular verbs जो जिसका last word consonant होता है. जैसे कि if you see the verb stop, okay, so here the last word is consonant. हर किसी वर्ड में नहीं होता है बेटा, दिस इज ओनली फॉर सम वर्ड्स. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, वी विल डबल द कॉन्सोनेंट एंड देन वी विल ऐड ई डी. ठीक है, व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू डबल द कॉन्सोनेंट एंड देन वी वुड बी एडिंग ई डी टू इट. यू कैन सी द सेकेंड एग्जाम्पल, टैप. हियर ऑल्सो दिस इज योर कॉन्सोनेंट, जो लास्ट लेटर है तो वहाँ पे हमने डबल पी किया और उसके बाद ई डी ऐड कर दिया. तो ये टैप्ड क्या हो गया आपका, V2 दैट इज पास्ट टेंस एंड V3 दैट इज पास्ट पार्टिसिपल. फिर क्लैप हो जाता है क्लैप्ड एंड प्रेफर हो जाता है प्रेफर्ड. थर्ड सिचुएशन इज इफ द वर्ब एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट प्लस वाई देन वाई इज रिमूव्ड एंड IED इज एडेड. दिस इज समथिंग विच यू कैन लर्न. See the word over here, last letter is consonant, right? और उसके आगे वाला भी क्या है, consonant है ना. तो जब हमारा लास्ट के दो लेटर्स consonant प्लस y होता है, ठीक है, consonant प्लस y, then what are we going to do, we are going to remove y and add IED. For example, over here second one is reply. राइट, सो हियर द लास्ट लेटर इज वाई और उसके आगे वाला जो लेटर है एल वो क्या है, हमारा कॉन्सोनेंट है. तो इसके अंदर भी हमको वाई निकाल के क्या करना है, IED ऐड करना है. इन द सेम वे यू कैन मेक अनदर वर्ड, फॉर एग्जाम्पल क्राई. सो हियर यू कैन रिमूव वाई एंड ऐड IED. ओके, सो यू नीड टू रिमेंबर दीज स्पेलिंग्स रिगार्डिंग रेगुलर वर्ब्स. इट्स नॉट नेसेसरी कि हर एक वर्ब आपका इसी कैटेगरी में फॉल होगा. सम ऑफ द वर्ब्स आर लाइक सच दैट यू नीड टू जस्ट ऐड डी और जस्ट ऐड ED. फॉर एग्जाम्पल इफ आई से प्ले, ठीक है, अभी प्ले के अंदर लास्ट लेटर क्या है आपका, वाई है और उसके आगे वाला लेटर वोवेल है ना. अभी जो हमने लास्ट वाला पढ़ा उसमें क्या था, कॉन्सोनेंट प्लस वाई, और यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट प्लस वोवेल प्लस वाई. यहाँ पे हमारे ये वर्ब में क्या सिचुएशन है, वोवेल प्लस वाई है ना. तो यहाँ पे हमें वाई को निकाल के IED नहीं करना है, हम प्ले के अंदर सिर्फ ED ऐड कर देंगे. ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू रिमूव वाई एंड ऐड IED बिकॉज वाई के आगे वाला लेटर कॉन्सोनेंट नहीं है, वोवेल है. ठीक है, so you need to remember those things. Those are small things which you will learn once you start having practice of it and learning more and more about regular and irregular verbs. Now let's see some irregular verbs over here. Some irregular verbs have completely different simple past and past participle. Now this is something which you have to learn because irregular में कोई specific rule नहीं होता है. Okay? कोई स्पेसिफिक रूल नहीं होता है कि इसके साथ यही वाला रूल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल इज़ एम का हो जाता है वॉज और पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है बीन. इज़ एम हम प्रेजेंट टेंस के लिए यूज़ करते हैं, ये किसका फॉर्म है, बी का फॉर्म है. ओके, इज़ एम इज़ बी फॉर्म फॉर प्रेजेंट टेंस और वॉज हमारा बी फॉर्म ही है लेकिन हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं.
और बीन हो जाता है पास्ट पार्टिसिपल। इन द सेम वे आर एंड वर, वो दोनों भी किसके फॉर्म है, बी के, लेकिन आर हम यूज़ करते हैं बेस फॉर्म प्रेजेंट टेंस एंड वर फॉर पास्ट टेंस, और बीन सेम रहता है। बाई बॉट बॉट, सी सॉ सीन, go went gone, tear tore torn. So these are some words which are completely different. Okay, there is no match. आपका प्रेजेंट अलग है बेस फॉर्म, आपका पास्ट पार्टिसिपल भी अलग है और पास्ट टेंस भी अलग है। सम ऑफ देम चेंज अ लेटर और टू इन द स्पेलिंग। फॉर एग्जाम्पल सिट है, उसमें सैट सैट, मतलब सिट के अंदर जो आई है राइट, उसको हमने सिर्फ चेंज करके कर दिया सैट। ठीक है, कम केम कम, bleed bled bled, ring rang rung. In this also you can see ring is our V1, अभी उसमें से हमने I को निकाल के A डाल दिया तो वो हो गया हमारा V2 rang, और A को निकाल के U डाल दिया तो वो हो गया हमारा V3, that is past participle. Drink drank drunk, so that is again the same thing. In the first one it is I, second one it is A, and third one is U. Give gave given. Okay, now some irregular verbs change their spelling to OUGHT और UGHT. जैसे कि कैच हो जाता है कॉट, यहाँ पे हमने क्या किया, कैच का CH निकाल दिया, CATCH, so we removed CH, TCH, and we added UGHT, caught. Think thought thought, bring brought brought, and fight fought fought. Some irregular verbs retain the same form. These are some verbs which you need to remember. ये भी irregular verbs में ही आते हैं, क्योंकि ये वो वाले वर्ब्स है जिसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसका प्रेजेंट पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल तीनों के तीनों सेम रहते हैं। कट का सेम ही रहता है, शट सेट बिड कास्ट हर्ट पुट। ओके, दीज आर सम वर्ड्स विच डू नॉट चेंज। हम किसी भी फॉर्म में यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और पास्ट पार्टिसिपल में भी यही वाले फॉर्म यूज़ करते हैं। सो आई होप कि आपको ये स्पेलिंग्स समझ में आ गए होंगे। ठीक है, और कुछ ऐसे भी है जो काफ़ी डिफरेंट होते हैं, बट यू नीड टू लर्न दैट। लेट्स सी द फिफ्थ वन, दैट इज़ ऑन पेज नंबर 66. Some irregular verbs either take a T or replace the last letter D with the T. And sometimes in words with double E, one E is dropped. For example, deal becomes dealt. So here you can see that the last, over here what they have done, in the word deal they have just added the letter T. ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एक लेटर ऐड किया है तो ये हो जाता है हमारा V2 एंड V3. ओके, मीन मेंट मेंट. अभी सेंड के अंदर व्हाट दे हैव डन, द लास्ट लेटर इज D, so they are going to replace this D with T. Okay, send or sent, bend bent bent, lend lent lent, and weep wept wept. Over here there is 2E in the present form, that is base form, और जब हमने उसको चेंज किया तो हमने एक E ड्रॉप कर दिया और पीछे T ऐड कर दिया. ठीक है, तो वीप का हो गया वेप्ट. जैसे कि स्लीप, द वर्ड स्लीप. ओके, now over here also sleep is the base form or you can say the first form, present form. अभी इसके अंदर हम अगर past tense बना रहे हैं उसके, तो E निकाल देंगे एक और T ऐड कर देंगे, तो ये हो गया आपका slept, and that would be your V2 and V3. ठीक है.
नाउ सम वर्ब्स हैव बोथ रेगुलर एंड इरेगुलर फॉर्म, जैसे कि लीप बन गया लीप्ड और लीप्ड। अभी ये जो वर्ड है लीप, ठीक है, अगर हम उसके अंदर टी ऐड करते हैं देन दैट इज इरेगुलर वर्ब। लेकिन हम उसको रेगुलर फॉर्म में भी बना सकते हैं, जैसे कि लीप के अंदर हम सिर्फ ईडी भी ऐड कर सकते हैं तो वो भी सही ही होगा। तो लीप्ड क्या है, रेगुलर फॉर्म है, और लीप्ड क्या है, इरेगुलर फॉर्म है। ठीक है, स्पिल्ड, स्पिल का स्पिल्ड होता है और स्पिल्ट होता है, वैसे ही लर्न का लर्नड भी होता है और लर्नड भी होता है। ठीक है, सो योर लर्नड इज द रेगुलर फॉर्म एंड लर्नड इज द irregular form. Okay, now there are some list given on page 143. If you want to, you can have a look in your textbook. I hope that you are clear कि हम सिंपल पास्ट टेंस कब यूज़ करते हैं, और ये जो फॉर्मेशन है वर्ब्स के स्पेलिंग के वो सारे भी आपको ध्यान रखने हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू आर क्लियर विथ द पास्ट टेंस हम कब यूज़ करते हैं। As I told you that we are going to use past tense for the actions which are already completed. First thing. Second thing, for telling the stories or narrating the incidents. Whatever incidents have taken place, for all the incidents we are going to use past tense. And the third thing is when we are talking about the past habits. मतलब वो habits जो हम पहले करते थे, जो हुआ करती थी हमारी, ठीक है, पास्ट में, लेकिन अभी हम नहीं करते हैं। और हमने सीखा कि वर्ब्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है रेगुलर और दूसरा होता है इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स में सेकेंड और थर्ड फॉर्म सेम रहता है, मतलब पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल मोस्ट ऑफ द टाइम सेम रहते हैं। और वो कैसे बनते हैं, या तो हम डी ऐड करते हैं या फिर ईडी या फिर आईईडी ऐड करते हैं, ठीक है, वर्ब में। और इरेगुलर वाले कैसे होते हैं, जिसके अंदर पूरा वर्ड चेंज हो जाता है। ओके, so there are some rules which we studied for regular and irregular, but there are other verbs which are on page number 143. You can have a look at that, and I would request you all to learn those words, learn the past tense and past participle of each and every verb.